हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी वंस अगेन। आज मेरे पास में एक चैनल्ड मैसेज है आप सभी के लिए जो भी इस वीडियो के कांटेक्ट में आएंगे और जब भी आएंगे। ये मैसेज मुझे सुबह मिला था आज और मैंने इसको अपनी डायरी में एज सच नोट कर लिया है और मैं इसको रीड कर रही हूँ। जैसे मुझे मैसेज मिलते जा रहा था, जिसको ऑटो राइटिंग बोलते हैं, तो ऑटो राइटिंग के द्वारा मुझे ये मैसेज मिल रहा था और मैंने इसको उसी समय पर नोट कर लिया था। और इसके बाद में एक बार मैं पहले आपको ये मैसेज पूरा पढ़ के सुनाऊंगी जो मुझे मिला है, और उसके बाद में मैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगी और साथ में कुछ दूसरे अनाउंसमेंट्स भी करूंगी जो लोग बहुत दिनों से मेरी रीडिंग्स की वेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए। लेकिन वो वीडियो के लास्ट में है। अगर आपने रीडिंग बुक करवा रखी है या आप एक रीडिंग के लिए वेट कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होंगे, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये मैसेज रीड करके सुनाती हूँ जो आज मुझे मिला है। मैं डायरी के ऊपर फोकस कर देती हूँ इसे। ओके, जैसा कि इस पर लिखा हुआ है, और ये मैसेज आपको फर्स्ट पर्सन की फॉर्म में मिलेगा, लेकिन इसमें जो फर्स्ट पर्सन है वो मैं नहीं हूँ, ये मेरे गाइड्स के द्वारा संदेश है, तो फर्स्ट पर्सन मैसेज है। इसको आप उसी तरह लेने की कोशिश कीजिएगा। दीज वर्ड्स आर नॉट माई वर्ड्स। हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम माई स्पिरिट गाइड्स, specifically परम पूज्य महावतार बाबा जी wants to talk to you all through this message। यहाँ से मैसेज स्टार्ट हो रहा है। This message is for the sake of your individual life and for all humanity. In the rat race of money and power, you, my children, are losing your connection with divine and connection with self. Go back within. Come back towards your divine self. You are not here to earn money and power. These are weapons of Maya to keep you from returning back to Godhead. My children, wake up from sleep and open your eyes to identify your true divine self. Spend time to gain spiritual power and work on your health to enjoy a safe life. In one of my previous messages, I told you to do pranayam, breath work, meditation, and to connect with your spirit guides. My dear child, save time to reconnect with your divine nature. Leave this rat race and go into the shelter of lotus feet of Sri Rama. Chant holy names of God and meditate upon him. Keep your body vessel clean, toxins free, and strong enough to resist outside negative forces. Try to make yourself an idol image of the God you worship. When you reflect the qualities of Narayana, Lakshmi will come to. When you reflect the qualities of Narayana, Lakshmi will come to you automatically. Don't try to please Lakshmi before pleasing Narayana. All the tarot readers and healers out there, follow your power to guide people in right direction, but also keep your spiritual power safe for your own soul growth. Don't spend too much power to gain more money, power, or fame. What ultimately you will be benefited by is your spiritual growth you made and the true service to humanity you did in this lifetime. Not how many readings or healing sessions you took or how much fame or money or power you gained. Try to minimize your efforts to earning money through readings and healings. You are already blessed with divine love, and when you serve humanity, we provide you everything you need. So don't worry about your earning here. Just try to increase the balance of spiritual power and service to humanity. Only that will be counted in your afterlife. From this channel, we will deliver our messages in different forms from now. This channel doesn't require cards to deliver our message. She will use cards frequently, but our messages will be open to all of you with or without cards.
So be aware whenever a message is coming to you, it can give you a right guidance in right time. Keep your eyes open and ears ready to receive our messages in future. Also, Gunjan will serve you by doing her oracle and tarot readings with her team members chosen by us. Feel free to get your answers, but as per our instructions, she will take very selective readings from now onwards. And also, she is lowering her fee to serve more people who cannot afford a highly paid reading. Also, try not to ask to her about your future, because your future is decided by the choices you made. Rather, when you come for a reading, ask for our guidance, ask for the good choices you can take to have a better future. Live a healthy and devotional life, and that will help you in long run. Lots of blessings, Babaji. सो दिस वॉज द ओरिजिनल मैसेज जो मुझे मिला था, और थोड़े से एक्सप्लेनेशन, और जिन लोगों को अंग्रेज़ी में समस्या हो रही समझने में, उनके लिए मैं इस मैसेज को हिंदी कर देती हूँ, और जो लोग अनाउंसमेंट्स के लिए रुके हुए हैं वो भी इस मैसेज को पूरा सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज मेरे मास्टर महावतार बाबा जी के द्वारा दिया गया है, और वो ये कह रहे हैं कि ये मैसेज हर एक इंडिविजुअल के लिए भी है और मानवता के लिए भी ये मैसेज डिलीवर किया जा रहा है। बाबा जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो रैट रेस लगी हुई है, यानी कि जो भाग दौड़ लगी हुई है, एक भागम भाग सी लगी हुई है पैसों के लिए और पावर गेन करने के लिए, इसकी वजह से आप डिवाइन के साथ और स्वयं के साथ अपने कनेक्शन को खो रहे हैं। इसलिए बाबा जी आपसे कह रहे हैं कि आप अपने भीतर वापस लौट कर आइए, अपने डिवाइन सेल्फ से कनेक्ट होइए। आप इस दुनिया में, यहाँ इस प्लेनेट पर मनी और पावर अर्न करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मनी और पावर ये माया के बनाए हुए हथियार हैं जो आपको ईश्वर की ओर लौटने से रोक रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि अपनी आंखें खोलिए, नींद से जागिए और अपने ट्रू डिवाइन नेचर को पहचानने की कोशिश कीजिए। इस पर लिखा है स्पेंड टाइम टू गेन स्पिरिचुअल पावर। इस समय में, और ख़ास तौर से अभी का जो कठिन समय चल रहा है, आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को गेन करने पर और अपनी हेल्थ को बेटर बनाने पर समय बिताइए, ताकि आप एक सेफ लाइफ बिता सकें आगे। क्योंकि आगे आने वाला समय, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपके पास में स्पिरिचुअल सपोर्ट है, तो ही आप इस टफ टाइम को ईजिली गुजार पाएंगे। इन वन ऑफ माई प्रीवियस मैसेज, ये बाबा जी का जो मैंने लास्ट SRT मैसेज आपको दिया था, SRT सेशन जब किया था मैंने, उस समय की बात हो रही है यहाँ पर। और उस समय पे वॉइस थोड़ी सी धीरे आ रही थी, तो शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई थी। वो मैसेज था, उसी के बारे में ये बात हो रही। इसमें लिखा है, मेरे एक प्रीवियस मैसेज में मैंने आपको बताया था, प्राणायाम, ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन कीजिए और अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। तो इस समय में आपको यही सारे काम करने चाहिए। प्राणायाम कीजिए, ब्रेथ वर्क कीजिए अपने लंग्स को मजबूत बनाने के लिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश कीजिए। माय डियर चाइल्ड, सेव टाइम टू रिकनेक्ट विद योर डिवाइन नेचर। अपनी दैवीय प्रकृति को समझने के लिए अपने आप के साथ कनेक्ट होइए, वापस खुद के साथ कनेक्ट होइए। लीव द रैट रेस, इस दौड़ भाग की ज़िंदगी को, इस आपाधापी को, इस कंपटीशन को छोड़ दीजिए और अपने आप को लोटस फीट श्री राम, यानी आप अपने ईश्वर जिनको भी आप मानते हो, उनके चरणों में आप अपने आप को समर्पित कीजिए। चैंट होली नेम्स ऑफ गॉड एंड मेडिटेट अपॉन हिम। आप अपने ईश्वर की छवि के ऊपर मेडिटेट कीजिए और उनके होली नेम्स का आप जाप कीजिए इस समय में। कीप योर बॉडी वेसल क्लीन, अपनी बॉडी की वेसल को, ऊर्जा को क्लीन रखने की कोशिश कीजिए, अपनी बॉडी को टॉक्सिन्स से फ्री रखने की कोशिश कीजिए। नेचुरोपैथी के द्वारा, अपने फूड के द्वारा, बैलेंस डाइट के द्वारा, हेल्दी डाइट के द्वारा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, ताकि आप किसी भी तरह के नेगेटिव फोर्स के अटैक से आप बच सकें। इस पर लिखा है, ट्राई टू मेक योर सेल्फ एन आइडल इमेज ऑफ द गॉड यू वर्शिप। जिस ईश्वर की आप पूजा करते हैं, आप सिर्फ उनकी पूजा मत कीजिए, उनके जैसी अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप ईश्वर की क्वालिटीज़ को अपनाते हैं, नारायण की क्वालिटीज़ को अपनाते हैं, यानी ईश्वर के समान क्वालिटीज़ जब आपके अंदर होती हैं, तो लक्ष्मी यानी कि धन संपत्ति ऑटोमेटिकली आपकी दिशा में आएगी।
इसलिए लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बजाय नारायण को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद एक स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर टैरो रीडर्स और हीलर्स के लिए, जो भी टैरो रीडर्स और हीलर्स, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे टैरो रीडर्स और हीलर्स भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी, और इंक्लूडिंग मी, हमारे लिए एक मैसेज है। ऑल द टैरो रीडर्स एंड हीलर्स आउट देयर, जो भी टैरो रीडर्स और हीलर्स इस मैसेज को सुन रहे हैं, अपनी पावर को लोगों को गाइड करने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल पावर को बचा कर रखिए, जिससे कि आपकी अपनी सोल की ग्रोथ भी हो सके। अपनी बहुत अधिक पावर का खर्च मत कीजिए, अपनी बहुत अधिक पावर को, अपनी स्पिरिचुअल पावर को लोगों पर इतना खर्च मत कीजिए मनी, पावर और फेम पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, पावर पाने के लिए और फेम पाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को खर्च मत कीजिए। उतनी ही स्पिरिचुअल पावर खर्च कीजिए जितनी आप कमा रहे हैं, उसमें से अपनी सोल ग्रोथ के लिए बचाकर कुछ हिस्सा आप दूसरे लोगों की सर्विस के लिए दीजिए, कुछ हिस्सा आप दूसरे लोगों की सेवा के लिए दीजिए। लेकिन पैसा कमाने के लिए, मनी के लिए या फेम पाने के लिए इस स्पिरिचुअल पावर का, एक बहुत अनमोल जो धन आपको मिला है, इसका आप इस्तेमाल ऐसी शुद्र चीज़ों को पाने के लिए मत कीजिए। वॉट अल्टीमेटली विल यू बी बेनिफिटेड बाय इज योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। हाँ, इसमें कहा जा रहा है कि आपने इस धरती पर रहकर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आप कर रहे हैं, अल्टीमेटली वही काउंट होगी, और जो आपने ह्यूमैनिटी की सर्विस दी है इस अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के द्वारा, आप जो ह्यूमैनिटी की सेवा कर पाए, मानवता की जो सेवा कर पाए, केवल उसी को काउंट किया जाएगा। आपने यहाँ रहकर कितना पैसा कमाया, कितने रीडिंग्स लिए, कितने हीलिंग सेशंस लिए, और आपने कितनी पावर गेन करी या कितना मनी आपने बनाया, ये सब कुछ काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए जितने भी टैरो रीडर्स और हीलर्स हैं, उनको यहाँ बाबा जी की सलाह है कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए और उस स्पिरिचुअल ग्रोथ के माध्यम से उसके कुछ हिस्से को ह्यूमैनिटी की सर्विस पर लगाइए। इस पावर का और इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का इस्तेमाल नेम, फेम और मनी पाने के लिए मत कीजिए। यहाँ पे लिखा है ट्राई टू मिनिमाइज योर एफर्ट्स टू अर्निंग मनी थ्रू रीडिंग्स एंड हीलिंग्स। ये रीडिंग्स और हीलिंग्स के द्वारा पैसा कमाने की कोशिश मत कीजिए। आप ऑलरेडी एक डिवाइन सोल हो, आप ऑलरेडी हमारे डिवाइन लव से हमने आपको ब्लेस किया है, और जब आप ह्यूमैनिटी को सर्व करते हो तो हम आपको वो हर चीज़ देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। इसलिए आपको अर्न करने की चिंता करने की, पैसा कमाने की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रहते हुए जस्ट ट्राई टू इंक्रीज द बैलेंस ऑफ स्पिरिचुअल पावर एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। आपको एक फाइन बैलेंस बना के रखना है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्वयं की भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से आप मानवता की भी सेवा कर सकें। इसके बीच में बैलेंस बनाकर चलिए। ओनली दैट विल बी काउंटेड इन योर आफ्टर लाइफ। इस जीवन के बाद के जीवन में यही काउंट होगा कि आपने कितनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की और आपने मानवता की कितनी सेवा की। फ्रॉम दिस चैनल, इस चैनल यानी माइंडफुल जर्नी, क्योंकि आपको पता है कि ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल हमेशा से ही मेरे गाइड्स के द्वारा मुझसे बनवाया गया चैनल है। तो इस चैनल पर, फ्रॉम दिस चैनल वी विल डिलीवर आवर मैसेज इन डिफरेंट फॉर्म्स फ्रॉम नाउ। इस चैनल पर हम विभिन्न प्रकार से अपने मैसेजेस को लाते रहेंगे। मेरे गाइड्स का है ये, मैं, दिस इज़ नॉट माई मैसेज। इस चैनल पर हम डिफरेंट मैसेजेस को समय समय पर लाते रहेंगे। दिस चैनल डजेंट रिक्वायर कार्ड्स टू डिलीवर आवर मैसेज। इन मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए कार्ड्स की आवश्यकता नहीं होगी। शी विल यूज़ कार्ड्स फ्रिक्वेंटली। शी मीन्स मी, आई, यानी मैं, गुंजन। यहाँ लिखा है कि वह कार्ड्स को फ्रिक्वेंटली, अक्सर यूज़ किया करेगी। बट आवर मैसेजेस विल बी ओपन टू ऑल ऑफ यू विद और विदाउट कार्ड्स। लेकिन कार्ड्स के बिना हो या कार्ड्स के साथ हो, हमारी ये मैसेजेस सभी के लिए हैं। सो बी अवेयर वेन एवर अ मैसेज इज गोइंग कमिंग टू यू। जब भी कोई मैसेज आए तो आप अवेयर रहें, सावधान रहें। इट कैन गिव यू राइट गाइडेंस इन राइट टाइम। हो सकता है कि आपके लिए सही समय पर सही गाइडेंस का ये मैसेज हो। कीप योर आइज ओपन। अपनी आंखें खुली रखिए और अपने कान खुले रखिए इन मैसेजेस को भविष्य में रिसीव करने के लिए। ये लिखा है ऑल्सो गुंजन विल सर्व यू बाय डूइंग हर ऑरेकल एंड टैरो रीडिंग्स। गुंजन आपको ऑरेकल और टैरो रीडिंग्स के द्वारा सर्व करती रहेगी विद हर टीम मेंबर्स, अपने टीम के अन्य सदस्यों के साथ में, चूजन बाय अस, जिनको हमने चूज किया है। फील फ्री टू गेट योर आंसर्स। अपने आंसर पाने के लिए आप यू फील फ्री, जस्ट आराम से आप उनसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बट एज पर आवर इंस्ट्रक्शंस, लेकिन हमारे इंस्ट्रक्शंस, अभी जो रिसेंट इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग
शी विल टेक वेरी सेलेक्टिव रीडिंग्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इस मैसेज के बाद से मैं बहुत कम रीडिंग्स लिया करूँगी, बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग्स जिन पर मेरे गाइड्स मुझे आज्ञा देंगे केवल वो ही रीडिंग्स में लिया करूँगी। एंड ऑल्सो शी इज़ लोअरिंग हर फी टू सर्व मोर पीपल, और अधिक लोगों की सेवा कर पाने के लिए दे हैव इंस्ट्रक्टेड मी, मुझे आदेश दिया गया है कि मेरी फीस को कम किया जाए। हु कैन नॉट अफोर्ड हाईली पेड रीडिंग, जो हाईली पेड रीडिंग्स को नहीं ले सकते हैं उनके लिए फ़ी को कम किया जाए, ऐसा इंस्ट्रक्शन है मेरे पास में। अभी फ़िलहाल मेरे पास में बहुत सारे जो ऑलरेडी 1 महीने से मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो बहुत सारे ड्यू रीडिंग्स मेरी पड़ी हैं और उनकी फ़ीस ऑलरेडी आ चुकी है। तो उन लोगों की रीडिंग्स मैं दूंगी, जून में दूंगी मैं। और उन लोगों को जो मैंने ज़्यादा फ़ी ली है पहले, पुरानी जो मैंने फ़ी ली है, उसके बदले में मैंने उन सभी को हीलिंग कोर्स, मेरा जो हीलिंग कोर्स है वो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ एक्स्ट्रा मनी को कंपेंसेट करने के लिए। तो अब जो नई बुकिंग्स मैं लूँगी उनकी फ़ीस कम होगी, ऑब्वियसली उसका टाइमिंग भी कम रखूँगी मैं, फ़ी भी कम रखूँगी मैं, और उसके जो भी न्यू जो भी रूल्स, अभी तो आज सुबह ये मैसेज आया, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। जब भी मुझे आगे जो भी गाइडेंस आएगी मैं आपको बता दूंगी, या आप मेरे असिस्टेंट से बात कर सकते हैं रीडिंग्स के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। अभी मत कीजिएगा क्योंकि मई में मैं रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। जून में मैं अपनी जो ऑलरेडी मेरी जो ड्यू रीडिंग्स है उनको कंप्लीट करूँगी। तो जुलाई में जो अब मैं रीडिंग्स लूँगी वो मैं कम फ़ी वाली रीडिंग्स लूँगी। आप इंक्वायरी करके अपना नंबर नोट करवा के रख सकते हैं। जब भी मेरी रीडिंग्स रीओपन होंगी मेरी असिस्टेंट आपको कांटेक्ट करेगी। बहुत ही नॉमिनल फ़ी के ऊपर मैं अब से रीडिंग्स दिया करूँगी। ऑल्सो ट्राई नॉट टू आस्क अबाउट योर फ्यूचर। जब आप गुंजन से या मेरी टीम से आप रीडिंग लेते हैं, कोशिश करें कि आप अपने फ्यूचर को जानने की कोशिश ना करें, बिकॉज योर फ्यूचर इज़ डिसाइडेड बाय द चॉइसेस यू मेड। क्योंकि आपका फ्यूचर आपके द्वारा चयन किए गए जो चॉइसेस होती हैं, आपके द्वारा जो चुनाव किए जाते हैं, उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल क्लियरली बाबा जी आपको बता रहे हैं, फ्यूचर फिक्स नहीं होता। ऐसी चीज़ों के आप चक्कर में मत पड़िए कि ये ही होगा और ये नहीं होगा। जब जब हम जैसे जैसे हर दिन जो चॉइसेस लेते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर बदलता रहता है। रादर व्हेन यू कम फॉर अ रीडिंग, लेकिन जब आप एक रीडिंग के लिए आए, आस्क फॉर आवर गाइडेंस, हमारी गाइडेंस मांगिए। हमारी मतलब मेरे गाइड्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, इसलिए आपको बुलाया गया है, न कि आपका फ्यूचर बताने के लिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो जब आप रीडिंग के लिए आते हैं माइंडफुल जर्नी पर, तो आप ये प्रश्न पूछिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है या फ्यूचर में मेरे लिए क्या गाइडेंस है, बजाय ये जानने के कि ये होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली आप क्वेश्चन पूछेंगे और हम उसका आंसर करेंगे, लेकिन आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है। ट्राई टू आस्क फॉर गुड चॉइसेस, आस्क फॉर द गुड चॉइसेस। मैं कौन सी अच्छी चॉइस लूँ कि जिससे मेरा फ्यूचर बेहतरीन बने, ऐसा गाइडेंस आप मांगिए जब माइंडफुल जर्नी पर आप एक रीडिंग लेने आते हैं। एंड आस्क फॉर द गुड चॉइसेस यू कैन टेक टू हैव अ बेटर फ्यूचर। आप उन चॉइसेस के बारे में पूछिए जो आप ले सकते हैं जिससे कि आपका फ्यूचर बेटर बन सके। अच्छी चॉइसेस और अच्छी गाइडेंस मांगने के लिए आप रीडिंग लीजिए, टैरो रीडिंग। लिव अ हेल्दी एंड डिवोशनल लाइफ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आज के बाद एक हेल्दी और एक डिवोशनल लाइफस्टाइल जिए, ईश्वर के प्रति समर्पित एक स्वस्थ दिनचर्या को जीने की कोशिश कीजिए। एंड दैट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। लंबे समय पर जाने के बाद ये आदतें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, लाभकारी होंगी। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स बाबा जी, आपको बहुत बहुत आशीष बाबा जी के द्वारा। तो ये था मैसेज और उसके साथ में मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरी न्यू जो अनाउंसमेंट्स थी। रीडिंग के रेट्स, ऑब्वियसली मेरे पास आदेश आया है, इसलिए डेफिनेटली विदाउट चॉइस मैं इन रीडिंग्स की रेट को बहुत ही कम करने वाली हूँ। और हालांकि वो रीडिंग, क्योंकि मेरे को ये भी कहा गया कि बहुत सेलेक्टिव रीडिंग्स लेनी है, बहुत मुश्किल से जब जब मुझे आज्ञा होगी रीडिंग्स की तभी मैं लेऊंगी रीडिंग्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड है रीडिंग में तो आप अपना नंबर और नाम नोट करवा के रख दीजिए। जब भी कभी आदेश मिलेगा आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। यदि आप भाग्यशाली होंगे तो आपका नंबर रीडिंग के लिए आ जाएगा। और कोशिश कीजिए कि जब आप माइंडफुल जर्नी से रीडिंग लेते हैं तो आप ऑरेकल मैसेजेस, गाइडेंस, फ्यूचर गाइडेंस और ईश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए वो जानने की आप कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट मतलब लाभ में रहेंगे, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। बजाय ये जानने के कि क्या होने वाला है, आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या बेहतरीन चॉइस मैं ले सकती हूँ या ले सकता हूँ अपने फ्यूचर के लिए।
तो ये था आज का मैसेज। अभी मैं जून में अपनी पेंडिंग रीडिंग्स करूँगी और जून से कोशिश करूँगी कि कुछ मैसेजेस डिलीवर करूँ। मेरे एक बहुत ही अजीज़ मेरे शिष्य, मेरे स्टूडेंट कह सकते हैं, वो टैरो रीडर, वो भी अब चैनल पर उनको भी मेरे गाइड्स ने मुझे चुन के दिया है। वो भी कभी कभी यहाँ पर टैरो रीडिंग्स भी करेंगे, वो आपकी पर्सनल रीडिंग्स भी लिया करेंगे। तो आप जैसे ही वो चैनल पर अपीयर होंगे और उनकी भी उनकी फ़ी अलग रहेगी, मेरी फ़ी अलग रहेगी। अगर आप उनसे रीडिंग लेना चाहते तो भी आप रीना से बात कर सकते हैं, मुझसे रीडिंग लेना चाहते तो भी आप रीना से बात करके बुकिंग करवा सकते हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल कोई बुकिंग्स नहीं होंगी, या तो जून या फिर जुलाई में हम आपको नई बुकिंग्स दे पाएंगे। मैं तो ऑब्वियसली जून में नहीं दे पाऊँगी, मेरी पेंडिंग रीडिंग्स चलेंगी। जुलाई से आपके लिए नई बुकिंग्स होंगी, नई फीस के साथ में बुकिंग्स होंगी। इसके अलावा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्सेज, अभी फ़िलहाल आप रीडिंग नहीं ले सकते, लेकिन आप स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्सेज हम अभी आपको दे सकते हैं। क्रिस्टल अगर आप लेना चाहते हैं, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आप लेना चाहते हैं तो वो आप ऑर्डर करके ले सकते हैं। हालांकि लॉकडाउन की वजह से और दूसरी तमाम परेशानियों की वजह से हमारे पास प्रोडक्ट आने में और उसको आप तक डिलीवर करने में थोड़ी समस्या तो हमको आ रही है, वेट आपको करना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोग जो मेरे से ऑलरेडी रीडिंग बुक करवा चुके थे, महीने भर से वेट कर रहे हैं। मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ, मेरी फैमिली कंडीशंस की वजह से और मुझे मेरे गाइड्स के ऑर्डर की वजह से मैं आपको अभी तक रीडिंग नहीं दे पाई हूँ। मुझे आज ही आदेश मिला है कि मैं जून में वो पेंडिंग रीडिंग्स कर सकती हूँ, तो मैं जून में आपको आपकी पेंडिंग रीडिंग्स दूंगी। तब तक मैंने आपको जो फ्री हीलिंग कोर्स दिया है, प्लीज़ उसके एक्सरसाइजेज को आप कीजिए। और जब भी आपका नंबर आता है रीडिंग के लिए तो आप अपना अनुभव मुझे बताइए कि वो हीलिंग कोर्स लेकर आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच एंड मुझ में ट्रस्ट रखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। Thank you very much for listening. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.